Good morning and a very warm welcome to everyone on the special occasion of Grandparents' Day. This year is even more special as we are proudly celebrating the 25th glorious year of Longview Public School and also marking the first year of our pre-primary school. What a wonderful moment to cherish together. Grandparents are the roots of our families, the source of unconditional love and blessings. To begin this day of celebration, let us invoke the grace of the Almighty. I request our chief guest, respected Principal Sir, Honorable Vice Principal Ma'am, our coordinators, and some of our beloved grandparents to kindly come forward and light the ceremonial lamp, a symbol of wisdom, positivity, and enlightenment. Come few of the अरे राजू भैया हाथ लगाइए फोटो तो अच्छा ये ऐसे Thank you everyone. With this divine beginning, let us start our program. It gives me great pleasure to introduce our esteemed chief guest this morning, Mr. Alok Shah, an alumnus of St. Joseph's College, Nainital, went on to study at Colvin Talukdar's College, Lucknow, and later completed his post-graduation in physics from Allahabad University. After a brief stint as a journalist with the Times of India, he joined the State Bank of India, where he served with dedication for 31 years. Thereafter, he took charge of his family business and also contributed to society as the chairman of Purvanchal Bank, Nainital. We warmly welcome you, sir. Alongside him, we are delighted to have with us Mrs. Geeta Shah, one of the most loved personalities in our town. A passionate social activist, she has always been closely associated with children and young people, spreading warmth and positivity wherever she goes. We extend a heartfelt welcome to you, ma'am. We feel honored to have you both with us today. To honor today's occasion, I would now like to invite our respected Principal Sir and Vice Principal Ma'am to felicitate our chief guests, Mr. Alok Shah and Mrs. Geeta Shah, with a token of love and respect. A big round of applause, please. One second. School, I feel honored to invite our respected Principal Sir to address the gathering and share his inspiring words. Please welcome him with a
immense pleasure to welcome you all to this wonderful occasion of Grandparents' Day celebration at Longwood Public School, Noida. Is it fine if I speak in English or I speak in Hindi? Or I should be bilingual? Bilingual, I believe. At the outset, I would like to extend my heartfelt welcome to our chief guest, Mr. Alok Shah and Geeta Shah ji. Your presence will make a lot of difference to a very special occasion that we are celebrating today here. ये सेलिब्रेशन जो है हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल महत्व रखता है और उसका कारण ये है कि आज के समय में जब हम एक बहुत ही छोटी फैमिली की बात करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, जहाँ पर कि परिवार सीमित रह गया है माता पिता और बच्चों के साथ, तो कुछ समय अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए निकालते हैं, उनके साथ व्यतीत करते हैं, हमारे बच्चे उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हम लोग बहुत लकी होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड सन्स साथ में रह के एक वैल्यू समय आपस में बिताते हैं। बहुत कम रह गया है सर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच में कम से कम 50% ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चे तो हमारे बहुत छोटे हैं, तो हमें लगा था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र मेरे जितने होगी या मेरे से कम होगी शायद। तो दिस इज अ वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का स्वागत करते हुए ये स्पेशल ओकेजन में। तो ये हमारे टीचर्स ने, हमारी जो कोऑर्डिनेटर है वंदना मैडम और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ग्रैंड पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन स्कूल में करें। प्रयास तो हमारा है ही है, शायद नैनीताल में पहला प्रयास है किसी भी स्कूल के पास। और बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे अभी मेरे एंकर ने भी आपको बताया कि स्कूल का ये ग्रैंड पेरेंट्स डे कोइंसाइड हो रहा है विद आवर 25th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन। धीरे धीरे कैसे समय निकलता है हमें पता नहीं चला, और हमने 25 साल से हम नैनीताल में एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें आके कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हमें लोग कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी जो व्यक्तिगत इच्छा होती है कि हम और अच्छा कैसे करें, क्योंकि आप जब 0 में होते हैं तो आप 90 में तो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप 90 में होते हैं तो 90 से 100 पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो हमसे अगर कुछ गलतियां होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स और हमारे जो मैनेजमेंट है वो एक साथ मिलके काम करें। अभी एक कोई गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो अगर हम उसको चारों तरफ से धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम सबको मिलके एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाना पड़ेगा। तो कितना ही भी भारी गाड़ी हो तो हम उस गाड़ी को आगे ले जाने में सक्षम हैं। तो यही हमारी इच्छा है कि हमारे पेरेंट्स की भागीदारी काफ़ी बढ़े, है ना। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाते हैं तो कोशिश करें कि आप स्कूल के साथ कदम से कदम मिला के चलें। अगर आप स्कूल के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा कल के दिन स्टार न बने, ये संभव नहीं है। वो किस बैकग्राउंड से आता है, आपके पास क्या उसको देने के लिए सुविधाएं आज के दिन, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका प्रयास उचित था या उचित नहीं था। क्या आपने उसको जो घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए वो शिक्षा आपने सही दी या नहीं दी, ये बात बहुत मायने रखती है। हमने इस साल स्कूल को अपग्रेड किया सीनियर सेकेंडरी, तो जिसमें बच्चे अब 11th और 12th की शिक्षा भी हमारे साथ ले सकते हैं। हमने ये प्रयास किया तो ना हम बाल वाटिका भी शुरू करें। तो उसके कारण एक तो सीबीएसई कहता है कि जो स्कूल क्लास कक्षा 1 से आगे हैं तो उनको बाल वाटिका भी चलानी चाहिए। तो लास्ट ईयर तक हम लिखते थे कि बाल वाटिका हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन इस साल हमने ये भी प्रयास किया कि हम बच्चों के लिए बाल वाटिका भी खोलें। बाल वाटिका का मतलब है कि सीबीएसई ने एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर किया हुआ है और उन्होंने कहा है
अब जो ये 5 साल की एजुकेशन है हमारी, KG1 नर्सरी, KG1 KG2 जिसे हम कहते हैं, और क्लास 1 and 2 ये अब पार्ट हो गई है फॉर्मल एजुकेशन का। पहले आपके बच्चे को सीधे कक्षा 1 में एडमिशन मिलती थी। अब सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चा जब क्लास 1 में आए उससे पहले उसने 3 साल की एजुकेशन ली हो, और वो एजुकेशन जो हमारी है वो है नर्सरी, KG1 KG2, और फिर बच्चा क्लास 1 2 में आता है। हमारे देश में RTE भी लागू है, राइट टू एजुकेशन। उसके तहत 6 साल का बच्चा कक्षा 1 में आना चाहिए, है ना। तो पहले क्या होता था कि किसी भी बच्चे की उम्र 6 साल होती थी या 7 साल होती थी, तो वो अगर कहीं पढ़ा नहीं भी होता था तो भी उसको कक्षा 1 में एडमिशन मिल जाती थी। अब सरकार का ये प्रयास है कि बच्चे ने नर्सरी, KG1 KG2 भी पढ़ी हो तो ही उसको कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाए। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में लागू हुई और धीरे धीरे पूरे देश में उसको लागू किया जा रहा है, तो उसके तहत 6 वर्ष कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा कक्षा 1 में आ पाए। तो उसके लिए नर्सरी, KG1 KG2 का एजुकेशन भी कंपल्सरी। और इस एजुकेशन को हम थोड़ा सा डिफरेंस तरह से लेना चाहते हैं। सरकार भी ये प्रयास कर रही है और हमारा भी ये प्रयास है कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, मतलब वो अनुभव के साथ सीखे। तो जो KG1 KG2 KG या नर्सरी जो क्लासेस हैं, बहुत उम्मीद हमसे मत करिएगा कि हम आपके बच्चे को बहुत लिखाना पढ़ाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि वो अपने माहौल, जो भी हम कहते हैं वातावरण में रह के धीरे धीरे चीज़ों को सीखे, और जब तक वो क्लास 1 2 में पहुँचे तो धीरे धीरे वो कलम पकड़ना और धीरे धीरे लिखना शुरू करें। अब कंपटीशन तो बड़ा है, तो आपके दूसरे स्कूलों में बहुत नर्सरी के बच्चे को बहुत ढेर सारा लिखा दिया जाता है, मोटी मोटी कॉपी किताबें उनके लिए लाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा हमारा ये प्रयास रहा कि हमने बहुत किताबें इम्प्लीमेंट नहीं करी, है ना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स अपने ही लेवल पर बच्चों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ धीरे धीरे उसको सिखा सकें। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से बच्चा ज़्यादा भी सीखेगा और अच्छा भी सीखेगा। लेकिन आप लोगों की मदद की ज़रूरत हमें हर जगह पर पड़ेगी, और वो ज़रूरत किस तरह की है कि हम आपको डायरेक्ट कर पाएंगे कि आप बच्चे के साथ किस तरह का प्रयास करें। देखिए, किताबी ज्ञान के अलावा बहुत कुछ सीखने को है, तो हमारा फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान में रहता है। हमें सिर्फ ये रहता है कि बच्चे को मैथ्स आ रहा है नहीं आ रहा है, फिजिक्स आ रही है नहीं आ रही है, साइंस पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, पर इतना सब कुछ करने को है कि हम ये जानते नहीं है आज के दिन कि बच्चा फिजिक्स पढ़ के स्टार बनेगा या हिंदी पढ़ के स्टार बनेगा, ये हमें ये भी पता नहीं, या सिर्फ खेल कूद के स्टार बनेगा। आप समझ रहे? तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास आज के दिन ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम बच्चे को जज कर पाए कि हम उसको क्या शिक्षा दें। सरकार भी कोशिश कर रही है और ढेर सारे स्कूल विदेशों में और हमारे देश में भी हम ऐसे खुल रहे हैं जहाँ पर कि कक्षा 5-6 तक किताबी पढ़ाई है ही नहीं, किताबों से कोई पढ़ाई नहीं की जा रही है, बच्चा सिर्फ अपने वातावरण से सीख रहा है ना। तो अभी तो हम उस लीग में नहीं पहुँचे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम बच्चे को आइडेंटिफाई करके उनको सही रास्ते पर भेज सकें। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा प्रयास है इसकी आप देखेंगे कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और उनकी मेहनत को आप सराहेंगे। और आप सबको ग्रैंड पेरेंट्स डे आज के दिन होता है, इसलिए हमने ये संडे को ऑर्गेनाइज किया, तो आज के दिन ही ग्रैंड पेरेंट्स डे है। ये कल्चर एक्चुअली तो वेस्टर्न कल्चर है, विदेशों से आया है। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते नहीं हैं, वो ओल्ड एज होम में रहते हैं ज़्यादातर, है ना। या कुछ लोग जो जिनके पास अच्छा पैसा है तो खुद से भी जीवन यापन करते होंगे, बट उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, तो उनको ये बहुत ढेर सारे दिन मनाने का ज़रूरत पड़ता है ना। ग्रैंड पेरेंट्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की भी स्थिति यही होती जा रही है। हमारे बच्चे भी जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, तो वो रह नहीं रहे हमारे साथ। तो अगर एक दिन हमें मिलता है और हम उस दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करी गई है कि ये बच्चे इस दिन को ही सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स डे न मनाएं, बल्कि आपके साथ हमेशा रहें, आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे, जिससे कि बच्चों को
अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो सके, क्योंकि आपके पास क्या है देने के लिए? एक्सपीरियंस है सर। आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं ना सर, उससे आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी कोशिश मत छोड़िए कि आप अपने बच्चे को, अपने छोटे से नाती या पोते को कुछ भी देने से चूकें। तो प्रयास करिए कि आपके घर का माहौल हंसी खुशी का माहौल हो, खूब हंसे, खूब खुश रहें, और यही खुशी है जो बच्चा आगे रिफ्लेक्ट करेगा समाज में। आज के दिन इतना गुस्सा क्यों है लोगों में? क्योंकि हम लोग हंस नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं है, खुश रहने का समय नहीं है। तो जब आप ऑफिस से वापस लौट के आते हैं या अपने काम से वापस लौट के आते हैं, तो कोशिश करिए कि अपनी सारी तकलीफें ऑफिस छोड़ के आ जाए, कुछ भी तकलीफ घर लेके मत आइए। उसी तरह से जब आप घर से जा रहे हैं तो अपनी वाइफ से जो झगड़ा हो गया, बच्चे से जो झगड़ा हो गया, उसको ऑफिस में लेके न जाए। तो देखिएगा अपने आप खुशी का वातावरण पैदा होता है, और वही खुशी का वातावरण होता है जो बच्चे के अच्छे नेचर में रिफ्लेक्ट करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारा स्टेज छोटे बच्चों के ऊपर छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने आपसे कही, इनका आप थोड़ा सा इन पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो, आप अपने बच्चे को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकें। समाज में बहुत बुराइयाँ हैं, बट हम बुराइयाँ हमें नहीं लेनी हैं, हमें सिर्फ वो चीज़ देखनी है कि बुराइयों से अच्छाइयाँ जो हमें मिल सके हम उन्हें लें और वही अपने बच्चों तक हम रिफ्लेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच।